Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have successfully completed exercise 13.6. You can see up to question number 5th. So I hope you have understood all the questions that have been done in the previous video. So now in this video we are going to move ahead from that. That means we are going to start this video from question number 6, right? So देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें क्या गिवन है. So it is given that the capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters, right? So यहाँ पे हमें capacity given है एक closed cylindrical vessel की, that is 15.4 liters, जिसकी height कितनी है 1 meter, right? So यहाँ पे पहले मैं एक cylindrical vessel draw कर लेता हूं. So it will be something like this. Now हमें यहाँ पे given है कि इसकी capacity कितनी है to hold 15.4 liters, right, of any liquid or you can say water, right? Now let me just tell you, यहाँ पे हमें height given है इसकी, that is simply 15.4 liters. Oh sorry, let me just recorrect that. So the height was 1 meters, right? So the capacity was 15.4 liters, but the height is 1 meter, right? So ये हमें given है यहाँ पे. So now let us see further how many square meters or you can say meter square, right, of metal sheet would be needed to make it, right? So हमें यहाँ पे बताना है कि कितने मीटर स्क्वायर मेटल शीट जो है वो required है to make it, right? So that will be calculated by, first of all हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन के अंदर. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गिवन चीजें लिख लेता हूं to make it easier. So यहाँ पे हमें गिवन क्या है, that you can see the simply capacity of this vessel, right? So the capacity of cylindrical vessel, you can see that is given to us as 15.4 liters, right? अब अगर आपको ध्यान हो यहाँ पे पहले मैं इसको किसमें कन्वर्ट करूंगा, मीटर क्यूब के अंदर, right? So हमें पता है the relation you can see between the meter cube and liter. So 1 meter cube में कितने होते हैं, 1000 liters होते हैं, right? और मुझे पता है कि अगर मैं लीटर को मीटर क्यूब में करूंगा तो मुझे डिवाइड करना होगा 1000 से, राइट? सो मैं पहले इसको कन्वर्ट कर लेता हूं, यू कैन सी इन मीटर क्यूब. सो 15.4 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 1000 से, देन इट विल बी कन्वर्टेड इन मीटर क्यूब, राइट? अब आप देख सकते हैं जब मैं डिनोमिनेटर में जीरोस काउंट करूंगा, सो 1 2 3 जीरोस है, तो ये जो डेसिमल है ये लेफ्ट हैंड साइड पे 3 डिजिट्स पीछे चला जाएगा, राइट? सो 1 2, सो यहाँ पे 2 डिजिट्स तो ऑलरेडी हैं, एक मैं जीरो प्लेस कर लेता हूं. सो नाउ लेट मी जस्ट काउंट डाउन 1 2 3. सो 3 डिजिट से पहले क्या लगा दूंगा, डेसिमल, बिकॉज जीरोस कितनी थी डिनोमिनेटर में 3. सो मैंने यहां से डेसिमल से पहले 3 डिजिट काउंट की, तो 1 और 2 दो ही डिजिट थी, तो मैंने एक जीरो खुद से प्लेस कर ली एंड देन पुट अ डेसिमल हियर, राइट? सो यू कैन सी दिस 4 विल बी एज इट इज. नाउ यू कैन सी दैट विल बी इन मीटर क्यूब. सो इस तरह से सॉल्व किया मैंने इस डिवीजन को. सो finally we've got the capacity of this cylinder as you can see 0.0154 meter cube. Now both the things are same, right? So मैंने meter cube में convert कर लिया. Now let us see further. यहाँ पे हमें given क्या था, also you can see the height of this vessel, that is 1 meter, right? So now you can see both the units are same, so there will be no problem. Now what we have to first do here is find out the radius of this base, right? So मैं radius क्यों find out कर रहा हूं यहाँ पे, let me just tell you, because यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि कितना मीटर स्क्वायर मेटल शीट लगेगी to make this cylindrical you can see vessel, और उतनी ही शीट लगेगी जितना इस cylindrical vessel का टोटल सरफेस एरिया होगा, राइट? सो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, when we are able to know the radius of this cylinder, the radius of base of the cylinder, right? So हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया, और उतनी ही मेटल शीट लगेगी जितना कि टोटल सरफेस एरिया होगा, राइट? सो ये लॉजिक लगेगा यहाँ पे. तो यहाँ पे कितना मीटर स्क्वायर मेटल शीट लगेगी, वो कितनी होगी जितना इस सिलेंड्रिकल वेसल का टोटल सरफेस एरिया होगा, राइट? सो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता देता हूं, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, इफ यू जस्ट रिमेंबर देन द previous videos we have seen earlier, हमें पता है कि यहाँ पे टॉप और बॉटम क्या है, सर्कुलर है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. सो ये तो पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर कितने हो गए, 2 पाई आर स्क्वायर.
प्लस में इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट, तभी टोटल सरफेस एरिया निकलता है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, राइट। सो उसमें क्या क्या चीज होती है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टॉप का सर्कुलर और बेस का सर्कुलर रीजन, राइट। सो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता ही है, दैट इज 2 पाई आर एच, राइट। सो टुगेदर दिस विल फॉर्म द टोटल सरफेस एरिया। नाउ अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पाई कॉमन आ रहा है और एक आर कॉमन आ रहा है, राइट। सो अंदर क्या बचेगा, एच प्लस आर, राइट। सो दैट वाज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंडर, राइट। सो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, बट इससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस, एंड दैट विल बी सिंपली कैलकुलेटेड बाय, लेट मी जस्ट टेल यू फर्स्ट। सो यहां पे मैं इसको इरेज कर देता हूं। नाउ जैसा कि मुझे कैपेसिटी पता है, नाउ यू कैन सी द कैपेसिटी ऑफ cylindrical vessel is 0.0154 मीटर क्यूब। अब हम कैपेसिटी कैसे निकालते हैं एक सिलेंडर की, बाय द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, राइट। सो यहां पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं इसकी जगह पे। सो पाई आर स्क्वायर एच, ऑलरेडी यहां पे हमें कैपेसिटी पता है, दैट इज 0.0154 मीटर क्यूब। सो मैं इनको इक्वेट कर देता हूं। यू कैन सी दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी एंड दिस इज कैपेसिटी which we have, you can see given here, right? So now you can see pi की वैल्यू आपको पता है, that is 22.7 into radius हमें फाइंड आउट करनी है। So leave it r square into height हमें given है, that is 1 meter. So मैं 1 प्लेस कर देता हूं, that will be equal to 0.0154, right? So now let me just make some space. अब यहां पे आप ध्यान से देखिए तो 7 डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये जो 22 आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सो 1 विल बी, यू कैन सी रिमूव, नो नीड टू प्लेस। सो यहां पे आप देखिए 7 उधर चला जाएगा 0.0154 के मल्टीप्लाई में, देन डिवाइड में क्या आ जाएगा 22। आप चाहे तो 1 भी शिफ्ट कर लीजिए, तो 22 इंटू 1 22 ही होता है। सो नो नीड टू राइट दिस, राइट। अब यहां पे आप देखिए ध्यान से कि डेसिमल अगर मैं रिमूव करूं तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 4। सो डिनोमिनेटर में 4 जीरोस आ जाएंगी, लाइक दिस, राइट। सो 10,000 आ गया। अब मैं इनको रिमूव कर देता हूं जीरो को, राइट। सो 154 आ गया। नाउ 22 1 जा 22, 22 7 जा 154, राइट। सो 7 इंटू 7 कितना हो गया आपके पास, 49 डिवाइड में 10,000, राइट। अब मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, राइट। सो व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस डिजिट्स, राइट। सो 49 का स्क्वायर रूट तो कितना होता है, 7 डिवाइड में आप देख सकते हैं 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 100। आप देखिए 4 जीरो थी तो स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे तो 2 जीरो रह जाएंगी। सो 100 विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 10,000। सो 7 अपॉन 100, आप देख सकते हैं 2 जीरो है डिनोमिनेटर में, तो 2 डिजिट से पहले क्या लगना चाहिए, डेसिमल। अब यहाँ पे एक ही डिजिट है, एक जीरो में प्लेस कर लेता हूं। सो 1 2 देन अ डेसिमल एंड अ जीरो, राइट। सो 7 अपॉन 100 क्या होता है, 0.07। नाउ इट विल बी इन मीटर्स, राइट। आप देख रहे हैं हाइट मीटर में थी तो रेडियस भी किस में आएगी, मीटर्स में। सो दिस विल बी द रेडियस नाउ एज वी हैव कैलकुलेटेड, राइट। सो रेडियस हमें पता चल गई, दैट इज 0.07। अब मैंने आपको बताया था वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वेसल। उतनी ही क्या लगेगी, मेटल शीट रिक्वायर्ड होगी टू मेक दिस सिलेंड्रिकल वेसल, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द, you can see metal sheet in meter square, right? So now what I'm going to do here is simply find out the total surface area, right? So you can see we was going to find out the metal sheet required to make cylindrical vessel. So that will be equal to, you can see the total surface area of the cylindrical vessel. आप देख सकते हैं उतना ही मेटल शीट लगेगी जितना कि इस सिलेंड्रिकल वेसल का टोटल सरफेस एरिया होगा। क्वाइट इजी। सो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर मैं देखूं तो मैंने आपको बताया, दैट इज 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, राइट। सो दिस विल बी इन मल्टीप्लाई। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। सो पाई की वैल्यू 22.7, 2 एज इट इज, इनटू रेडियस हमने कैलकुलेट की, दैट इज 0.07 ब्रैकेट। नाउ h हाइट इज 1 मीटर, यू कैन सी हियर
प्लस रेडियस हमने कैलकुलेट की दैट इज 0.07 राइट. नाउ 1 प्लस 0.07, आप देखिए 1 के आगे कुछ नहीं है तो 0.00 और 0.07 इसको ऐड करता हूं, सो दैट विल बी यू कैन सी 1.07 राइट. सो ये आ गया. नाउ ये 0.07 एज इट इज मल्टीप्लाई, लेट मी जस्ट put the decimal clear, so then 22 upon 7 then 2 as it is right. So अगर मैं नीचे वाला पोर्शन रिमूव कर देता हूं now for space. now अगर आप ध्यान से देखें यहां पे पहले मैं क्या करने वाला हूं, इस ब्रैकेट को हटा देता हूं. now डेसिमल रिमूव करूंगा तो 2 डिजिट है तो 2 जीरो आएंगी, so let me just remove this now, so that will be 7 right. अब इसका भी डेसिमल रिमूव करूंगा तो 2 डिजिट तो 2 जीरोस, so now let me just remove this. अब यहां पे मुझे सिंपली सॉल्व करना है राइट. सो अब इसने 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 राइट. अब ये 100 इंटू 100 डिवाइड में कितना हो जाएगा 10,000 राइट. 4 zeros 1 2 3 4 राइट. नाउ 2 इंटू 22 कितना हो गया 44, 44 इंटू 107. सो लेट मी जस्ट चेक आउट 44 इंटू 107. सो 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 0 0 2 एज इट इज. नाउ 4 1 जा 4. नाउ अगेन यू कैन सी 4 से दोबारा मल्टीप्लाई करूं तो यही आएगा 8 2 and 4 right. So 8 into 10, 1 carry, 4 and 2 6 plus 1 7 and 4 right. So कितना है आपके पास 4708 right. Now let me just cross check. So 2 into 22 44, 44 into 107. So 7 4 is 28, 2 carry, then 4 0 0 2 as it is, 4 1 is 4 right. So 4 to 8, 4 to 8 and 8 into 10, 4 into 6 plus 1 7 and 4 as it is right. So that is exactly correct. Now अब जिसने zeros कितनी है डिनोमिनेटर में 4, so 1 2 3 4 4 डिजिट से पहले क्या लग जाएगा डेसिमल, so 0.4708 you can see meter square right. So हमें पता है सरफेस एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है right. And this will be you can see the metal sheet required to make this cylindrical vessel right. So quite easy, just you have to remember the formulas. You can see the total surface area of a cylinder is 2 pi r h plus r right. So this is how you have to solve such type of questions. So students, let us move on to the next question now. So this time question number 7th is given to us as, let me just read it, a lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior right. So आपको पता है यहाँ पे एक lead pencil के अंदर क्या होता है एक्चुअल में ग्रेफाइट होता है राइट. सो आप देख सकते हैं एक lead pencil है जो कि किस स्ट्रक्चर में सिलेंडर ऑफ वुड राइट. सो एक पेंसिल वुड से बनी होती है. सो यू कैन सी दिस इज अ lead pencil which is a cylinder of wood right. सो ये वुड का एक सिलेंडर है जो पेंसिल है. नाउ विद इन इट यू कैन सी एक क्या होती है ग्रेफाइट फिल्ड होती है राइट. सो यू कैन सी दिस इज द cylindrical graphite solid cylinder, you can see like this. So ये क्या है solid cylinder क्या है graphite है जो अंदर filled होती है right. So this is solid cylinder graphite right which is filled in this pencil right. So बाहर क्या है आप देख सकते हैं that is a solid wood cylinder right. So आप देख सकते हैं that is the cylinder right. You can also write the cylinder of wood, whatever you like, right? So बाहर क्या है wood है पूरी की पूरी सिलेंडर शेप में और बीच में क्या भरा हुआ है ग्रेफाइट फिल किया हुआ है which is in also you can see the shape of solid cylinder, right? Now what we have to read further is you can see the diameter of the pencil is 7 mm. So pencil का मतलब है कि आप देख सकते हैं अगर मैं थोड़ा सा इसका सर्कल बड़ा कर दूं so you can see it clearly, right? सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो अंदर वाला है ये क्या हो गई, ये तो डायामीटर हो गया किसका ग्रेफाइट का राइट. और अगर मैं बाहर वाले की बात करूं सो दैट विल बी द डायामीटर ऑफ यू कैन सी दिस पेंसिल राइट. सो डायामीटर ऑफ पेंसिल जो है दैट इज हियर गिवन यू कैन सी एज 7 mm राइट. और अगर मैं बात करता हूं सिर्फ अंदर वाले ग्रेफाइट का डायामीटर, सो diameter of graphite you can see that is also given here, that is 1 mm right. So यहाँ पे दोनों चीजें given है, the diameter of pencil and the diameter of the graphite inside it right. So now let me just read further. Now if you can see the length of pencil is
14 सेंटीमीटर, राइट। सो आप देख सकते हैं यहां से लेके यहां तक दिस इज द लेंथ और यू कैन सी द हाइट हियर, राइट। सो वो कितनी है आपके पास 14 centimeters, right? So this is, you can see the length or you can see the height of this pencil, and we have to find out the volume of the wood and that of the graphite, right? So हमें किस किस की वॉल्यूम निकालनी है। एक तो ये जो वुड है आप देख सकते हैं, so अगर आप देख सकते हैं ग्रेफाइट को छोड़ देता हूं तो बची हुई क्या है, वुड ही होगी पेंसिल के अंदर, राइट। सो उसकी वॉल्यूम निकालनी है, एंड ऑल्सो यू कैन सी द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट इनसाइड इट, राइट। सो आप एक तो इनर सिलेंडर जो कि ग्रेफाइट है उसकी वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ऑल्सो यू कैन सी बची हुई वुड की वॉल्यूम भी हमें फाइंड आउट करनी है। अब वुड की वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं पहले ही आपको बता देता हूं। अगर आप देखें बाहर वाला सिलेंडर कंप्लीट, राइट, सो मैं इसका पूरे का वॉल्यूम निकाल लूं, पूरे पेंसिल का वॉल्यूम निकालूं यानी कि, और उसमें से अगर मैं ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर दूं, सो ग्रेफाइट का वॉल्यूम हटा दूंगा तो बचेगा क्या, सिर्फ ये वुड बचेगी, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वुड। सो मैं आउटर सिलेंडर में से ये जो इनर सिलेंडर है उसको माइनस करूंगा, सो दैट विल गिव मी द वॉल्यूम ऑफ वुड, राइट। सो पहले मुझे दोनों की क्या निकालनी पड़ेगी, वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन हियर। सो इन द स्टार्टिंग वी आर गोइंग टू राइट द गिवन थिंग इन द क्वेश्चन, राइट। सो हमें गिवन क्या है, सिंपली यू कैन सी द डायमीटर ऑफ द पेंसिल। सो लेट मी जस्ट राइट दैट द डायमीटर ऑफ pencil is 7 mm, right? Then further आप देख सकते हैं the diameter of graphite is also given as 1 mm, right? So then further you can see the height is given. So height of pencil is 14 centimeter, right? So आप देख सकते हैं ये दोनों mm में है और ये सेंटीमीटर में गिवन है। So सबसे पहले मैं mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। नाउ रिलेशन क्या होता है mm और सेंटीमीटर का, लेट मी जस्ट टेल यू दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, राइट। सो ये रिलेशन आप ध्यान रखिए। अब मुझे अगर सेंटीमीटर को mm में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करना होगा, और अगर mm को सेंटीमीटर में करना है तो डिवाइड बाय 10। सो मुझे क्या करना है, यहाँ पे mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, डिवाइड बाय 10। सो नाउ यू कैन सी अगर मैं यहीं पे डिवाइड कर देता हूं, सो दैट डिवाइडिंग इट बाय 10 विल गिव यू इन सेंटीमीटर्स, राइट। सो ये क्या हो गया, सेंटीमीटर्स में हो गए। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू, अगर मुझे यहाँ पे डायमीटर गिवन है तो फिर रेडियस कैसे निकलेगी, दोनों का हाफ कर दूंगा, राइट, डिवाइड बाय 2। सो अगर मैं बात करता हूं पहले रेडियस ऑफ ग्रेफाइट की, सो रेडियस ऑफ ग्रेफाइट क्या आ जाएगी आपके पास, मैं इसका क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा, डिवाइड बाय 2। यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, डिवाइड बाय 2 होता है। सो डायमीटर कितना है आप देख सकते हैं ग्रेफाइट का, दैट इज 1/10। इसको किससे डिवाइड करूंगा, 2 से। आप देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया। अब ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे। सो व्हाट इट विल बी, यू कैन सी मल्टीप्लाई बाय 1/2। सो 2/1 क्या हो जाएगा, 1/2। सो दैट विल बी 1/20, 10 to the 20। सो दिस विल बी, यू कैन सी द रेडियस ऑफ ग्रेफाइट। सो अब मैंने रेडियस निकाल ली ग्रेफाइट की, सो दिस विल बी द रेडियस हियर, राइट। सो ये रेडियस कितनी निकल गई मेरे पास, 1/20 सेंटीमीटर। अब मुझे रेडियस पता है और हाइट भी पता है, राइट। सो हाइट और रेडियस पता है। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस इनर सिलेंडर, दैट इज द ग्रेफाइट, राइट। सो हम सबसे पहले अंदर वाले ग्रेफाइट की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सो लेट मी जस्ट रब दिस। So you can see the volume of inner cylinder, that is, you can see the graphite. So that will be calculated by the formula pi r square h. So हम सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, pi r square h. Now remember हम इनर सिलेंडर जो कि क्या है, ग्रेफाइट है, उसका वॉल्यूम पहले निकाल रहे हैं, राइट। सो नाउ यू कैन सी पाई की वैल्यू क्या आती है, 22/7 इंटू रेडियस। नाउ अब इसके रेडियस ऑफ ग्रेफाइट हमने अभी फाइंड आउट की, दैट इज 1/20 होल स्क्वायर इंटू हाइट, यू कैन सी दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस एज 14, राइट। सो 22/7 इंटू 1/20 इंटू 1/20 इंटू 14, राइट। नाउ if you want to solve this, so what it will be, you can see 7 1 is 7, 7 2 is 14, right? Then you can see 2 into 22 कितना हो गया आपके पास,
44, right? Divide by, you can see 20 into 20 कितना होता है 400, right? आप ध्यान से देखिए 4 1 जा 4 and 4 11 जा 44. So आप डिवाइड में देख सकते हैं कितना बच गया 100, right? So now 11 upon 100 कितना होता है, 2 zeros यानी 2 डिजिट से पहले क्या लग जाएगा डेसिमल, so that will be 0.11, right? So now you can see that will be in, you can see centimeter cube, right? हमेशा वॉल्यूम किस में निकलती है, cubic unit में. So this will be the volume of graphite filled inside the pencil, right? So ये तो हमने निकाल ली. अब मुझे क्या निकालना है, the volume of wood, right? So मैंने आपको बताया था volume of wood कैसे निकलेगी, आउटर सर्कल में से इनर सर्कल यानी कि ग्रेफाइट को वॉल्यूम को माइनस कर दूंगा. सो मैं आउटर सर्कल सिलेंडर की वॉल्यूम निकालता हूं, राइट? सो दैट इज ऑफ द पेंसिल. सो नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, राइट? सो नाउ स्टार्टिंग ऑफ दिस, सो नाउ वॉल्यूम ऑफ पेंसिल दैट इज अगेन कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच. आप देख सकते हैं ये बाहर वाला सिलेंडर ही है और सिलेंडर की वॉल्यूम कैसे निकलती है, पाई आर स्क्वायर एच, राइट? सो नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर. सो 22.7 इनटू रेडियस. नाउ आपको पता है बाहर वाली रेडियस कितनी थी, दैट इज 7 mm. मैंने आपको बताया दैट वाज 7 upon 10. सो इसका रेडियस कितना निकला था, यू कैन सी 7 upon 20, रिमेंबर? सो ये रेडियस कितनी थी इसकी, 7 upon 20. सो दैट विल बी स्क्वायर into height आपको पता है 14, right? So now you can see 22 upon 7 into 7 upon 20 into 7 upon 20 into 14. आप देखिए twice था, so square था तो दो बार मल्टीप्लाई कर दिया, right? Now let me just rub this. So अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7. Now you can see 2 11 जा 22, 2 10 जा 20, right? Now further if you want to reduce, so what it will be, you can see 2 10 जा 20, 2 7 जा 14, right? Now you can see denominator में आपके पास क्या आ जाएगा, 10 into 10 that is 100. so आप zeros में रखिए, easy हो जाएगा solution. Now you can see numerator में क्या आ जाएगा, 11 into 7 that is 77, 77 into 7, right? So let me just check out. So 7 7 ja 49, 4 carry, then 7 7 ja 49, 50 51 52 53, right? So 539, right? Now आप देख रहे हैं 2 0 थी डिनोमिनेटर में, तो 2 डिजिट से पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल. So 5.39, right? Let me just cross check it. So 7 7 ja 49, 4 carry, 7 7 ja 49 plus 4, that is be 53, right? So that is exactly correct. So this is the volume of the pencil, right? That will be in centimeter cube, right? So अब हमारे पास आउटर सिलेंडर यानी कि वॉल्यूम ऑफ पेंसिल भी पता है हमें, राइट? अब मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकलेगी, आउटर सिलेंडर में से इनर सिलेंडर यानी कि ग्रेफाइट की वॉल्यूम को माइनस कर दूंगा. सो लेट मी जस्ट डू दैट हियर. सो नाउ यू कैन सी इफ आई जस्ट रब द स्पेस हियर. सो दिस वाज, यू कैन सी the volume of this graphite, the inner cylinder, that is 0.11 centimeter cube. Remember this, right? So you can see the volume of wood, you can see will be calculated by the volume of pencil जो है यानी कि outer cylinder, complete cylinder, you can see इसमें से क्या करूंगा, volume of graphite जो है वो माइनस कर दूंगा यानी कि inner cylinder, the graphite, right? So आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पेंसिल मैंने अभी कैलकुलेट की, दैट इज 5.39 माइनस आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर यानी कि ग्रेफाइट कितनी कैलकुलेट की थी मैंने, 0.11, राइट? सो नाउ लेट मी जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस. सो आप देख सकते हैं 5.39 में से अगर मैं 0.11 माइनस करूंगा, सो 9 minus 1 is 8, 3 minus 1 is 2, 5 as it is, right? So that will be 5.28, right? Then that will be also in centimeter cube. So this will be the volume of this wood present in this pencil, right? And that is what we have to calculate. So that was all you can see in this question here. So students, let us move on to the next question, which is going to be the last question of this exercise. So understand it very carefully, right? So बढ़ते हैं इस question की तरफ. Now you can see the question number 8 is given to us as a patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter
7 सेंटीमीटर, राइट। सो एक हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट को डेली क्या दिया जाता है, सूप दिया जाता है एक सिलेंड्रिकल बाउल के अंदर, यू कैन सी, जिसका डायमीटर जो है कितना होता है, 7 सेंटीमीटर, राइट। सो इफ आई जस्ट ड्रॉ द सिलेंड्रिकल बाउल रफली हियर, so that will be something like this, right? So ये है सिलेंड्रिकल बाउल जिसमें सूप दिया जाता है डेली इन अ हॉस्पिटल टू अ पेशेंट, राइट। नाउ इसका डायमीटर जो है, यू कैन सी द डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर, राइट। नाउ फर्दर इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बाउल को कितनी हाइट तक भरा जाता है, 4 सेंटीमीटर हाइट तक भरा जाता है, इसमें सूप दिया जाता है, राइट। नाउ यू कैन सी हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स, राइट। सो इसी तरह के सिलेंड्रिकल बाउल में जिसमें 4 सेंटीमीटर हाइट तक सूप फिल किया जाता है, आप देख सकते हैं। सो ऐसे 250 पेशेंट को सर्व करने पे कितना सूप जो है हॉस्पिटल को, यू कैन सी, बनाना पड़ेगा, राइट। सो हाउ मच सूप हैज the hospital to prepare daily for 250 patients, right? So let us see. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस सूप की वॉल्यूम निकालूंगा, right? So सूप की वॉल्यूम कैसे निकलेगी? By finding out the volume of this cylinder, right? So let us find out. You can see first of all, first I'm going to write the given thing, that is the diameter. So if I just write the given thing first, so the diameter of cylindrical bowl, that is 7 centimeter, right? So you can see clearly the radius will be calculated by dividing the diameter by 2, right? So 7 upon 2, or you can just put 3.5, right? Whatever you like. Now यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, simply find out करेंगे, you can see the volume of soup here, right? Or you can say the volume of cylinder. So यहाँ पे height भी हमें given है, so let me just write down that. So कितना height तक soup को fill करते हैं, that is 4 centimeter, right? So इतना ही हमें volume find out करना है. So you can see the volume of soup will be calculated by pi r square h, right? So let me just put the values here. So 22 upon 7 into radius, आप देख सकते हैं 7 upon 2 put कर लीजिए, square into height, you can see that is 4, right? So अब मैं इसको square को open कर देता हूं. So 7 by 2 into 7 by 2 into 4, right? अब मैं इसको solve करता हूं. आप देख सकते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. Then further 7 1 जा 7, 7 1 जा 7. अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. This will also get cancelled out. Then 22 into 7, that will be 154, right? So you can see that will be in centimeter cube. So ये तो आ गई, आप देख सकते हैं सूप की वॉल्यूम, राइट? नाउ क्लियरली हमें पता है कि कितने पेशेंट्स थे, दैट वाज 250 पेशेंट्स टू विच द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर सूप, राइट? सो कितना सूप बनेगा, पहले मैं इस, आप देख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब को किसमें कन्वर्ट कर लेता हूं, इन लीटर्स, राइट? सो वॉल्यूम ऑफ सूप हमेशा लीटर्स में ही होगी, राइट? सो मैं सेंटीमीटर क्यूब को किसमें कन्वर्ट करूंगा, लीटर्स में. नाउ द रिलेशन बिटवीन, यू कैन सी, लीटर एंड centimeter cube, that is 1 liter is equal to 1000 centimeter cube, right? But before moving on, let me first find out the that is that correct. So मैं यहाँ पे calculation को cross check कर लेता हूँ. So 22 upon 7, then radius 7 by 2, you can see clearly. So यहाँ पे आप देख सकते हैं radius 7 by 2 थी, 4 was the height given to us, right? So twice 7 by 2 and 4, so 2 is 4, then 2 cancelled out. Then 7 1 22 into 7 154, right? अब मैं इसको किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं, सिंपली इन लीटर्स. सो अब इसमें सेंटीमीटर, 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब. सो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में करना तो डिवाइड बाय 1000, राइट? सो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूंगा, बाय 1000. सो दैट विल बी 0.154 liters, right? So this will be, you can see quantity of soup in 1 cylindrical bowl, right? So मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 250 से. So that will be the total, you can see, quantity of soup that the hospital has to prepare daily, right? So now if I just make some space here, or you can also do it right here. So यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूं, so the soup
prepared by hospital daily is, you can see कितना हो जाएगा 250 into you can see 0.154, right? So now decimal remove करता हूं, so denominator में कितना आएगा 1000, right? So let me just remove this now. So 10 से 10 cancel. Now 25 into 154 divide by 100, right? So 25 into 154 मैं solve कर लेता हूं. So what it will be, you can see 5 4 is 20, 2 carry 5 is 25 to 27, then 5 and 5 and 6 7, right? Then further 2 4 is 8, 2 5 is 10, 1 carry 2 and 2 and 1 3, right? So that will be 7 and 8 15. So 7 plus 1 8 and 3. So 3850. Right? So 80 से 10 cancel. Now denominator में 10 है तो एक digit से पहले क्या लग जाएगी? Decimal. So 38.5 liters you can see of soup daily the hospital has to prepare for 250 patients, right? So quite easy. Just you have to apply the formula to calculate the volume, then multiply by converting that volume into liters by 250. That will get you 38.5 liters. That is 38.5 liters of soup that has to be prepared by the hospital daily. So that was all in this question as well as in this exercise.